السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین اکرام، ابھی آپ حضرات ایک دیوبندی مفتی کی کال ریکارڈنگ سماعت کریں گے۔ تو یہ مفتی سے پہلے جب میری بات ہوئی تھی کچھ دن پہلے، تو میں نے براہین قاطعہ کی عبارت اور دیگر کتاب کی عبارت میں نے اس کو پیش کیا تھا، دکھایا تھا، جب اس نے کتاب کی عبارت کو غلط مانا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں تحقیق کروں گا۔ میں اس کو تحقیق کرنے کا موقع دیا، چلو تحقیق کر کے بتاؤ۔ پھر جب دوبارہ میں نے آج کال کیا تو وہ عبارت وہ بھول گیا، تحقیق کیا نہیں، یا تو تحقیق کرنے کے باوجود وہ کفر دیکھ کر بھی وہ کفر میں مبتلا ہے ابھی تک۔ تو پھر میں نے جب اس کو پیش کیا تو گول مول کرنے لگے، عبارت پھر سے پیش کرو پیش کرو۔ اب وہ تحذیر الناس کتاب چھوٹی ہے اور حفظ الایمان چھوٹی کتاب ہے، اس لیے میں بیگ میں رکھتا ہوں، سفر میں بھی ہمیشہ ساتھ میں رکھتا ہوں۔ باقی جو براہین قاطعہ ہے وہ بڑی کتاب ہے، وہ زیادہ وزن ہے، اس وجہ سے میں بیگ میں رکھتا نہیں۔ تو وہ کتاب بار بار مطالبہ کرنے لگے۔ پھر میں نے کہا چلو جو کتاب میرے پاس ہے اس پر بات کرو۔ تحذیر الناس پر بات کرنے لگا یہ دیوبندی، لیکن وہ بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا ہے۔ جب تحذیر الناس پہ اس کو کفر نظر آیا کہ اس کے اکابر کافر ثابت ہو رہا ہے، تب وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور اس کی بخلاہٹ اور اس کی جو خوف ہے، میرا خوف اس پر اتنا طاری تھا، وہ کبھی تحذیر الناس پر چھوڑ کر جو ہے براہین قاطعہ پر بھاگتا ہے، کبھی حفظ الایمان پر بھاگتا ہے، کبھی اعلیٰ حضرت پر جھوٹے بہتان لگاتا ہے۔ اس طرح وہ بھاگتا رہا اور مجھے بولنے کا موقع بھی نہیں دیتا تھا وہ۔ اس کے باوجود میں بولنے کی کوشش کی اور اس کا کفر کو میں نے ثابت کیا۔ اور وہ ایک بار تو مسیلمۃ الکذاب کو بھی نبی کہہ دیا، معاذ اللہ۔ جو جھوٹا ہے وہ تو نبی نہیں ہے، لیکن مسیلمۃ الکذاب کو نبی مان کر وہ عقیدہ بنا رہا ہے، معاذ اللہ۔ غیر نبی کو، ایک گستاخ کو نبی مان کر اس نے کفر کیا۔ آپ سبھی حضرات سنیے، دیکھیے، یہ غلام محمد قادیانی کو بھی نبی مان رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ نبی وہاں لکھا ہوا ہے، اور اسی عبارت کا وہ مثال پیش کر رہا ہے کہ مرزا تو نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ یعنی مرزا نبی ہے، نبی پیدا ہوا معاذ اللہ اس کے نزدیک، کیونکہ مرزا کا مثال دے کر وہ خود کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی پیدا ہو، پھر بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جیسا کہ مسیلمۃ الکذاب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جیسا مرزا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ اس نے پیش کیا۔ تو اسی سے ثابت ہو رہا ہے کہ دیوبندی مرزا کو بھی نبی مانتا ہے اور مسیلمۃ الکذاب کو بھی نبی مانتا ہے۔ تو یہ کفر ہے غیر نبی کو نبی ماننا، اور حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی کا کوئی اگر دعویٰ کرے، کوئی نبی کسی کو مانے یا نبوت کا امکان بھی مانے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ یہ بھی دیوبندیوں کا مغالطہ ہے، اور اسی کو مرزا قادیانی اور قادیانی لوگ، مرزائی لوگ دعویٰ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دیکھو آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ یہ نبوت کے لیے چور دروازہ کھولنے والے دیوبندی کافر ہیں۔ سب سے پہلے قاسم نانوتوی نے یہ کتاب لکھ کر نبوت کا چور دروازہ کھولا ہے، اور اسی سے مرزا قادیانی داخل ہوا، اور مرزا قادیانی ڈاکہ ڈالا اسلام پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دیوبندی کافروں کو غارت کرے، ان کو عذاب میں مبتلا کرے، اور دنیا آخرت میں دیوبندیوں کو اللہ تعالیٰ رسوا فرمائے، آمین۔ آپ سبھی حضرات اس ویڈیو کو پورا سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مفتی صاحب، ہلو، ہاں ہلو، مفتی عالمگیر صاحب، مفتی عالمگیر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بولیے۔ میں پہلے بھی ایک بار بات کیا تھا، آپ نے علماء دیوبند کو غلط ثابت کیا تھا آپ نے، اور بعد میں پھر دوبارہ کال آپ نے کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن دوبارہ کال نہیں کیا آپ نے۔ کس کو؟ ہاں، علماء دیوبند کو؟ علماء دیوبند کو آپ نے غلط ثابت کیا تھا۔ نہیں، نہیں ثابت کیے تھے۔ میں نے جو علماء دیوبند کے بارے میں نے کتاب بتایا کہ علماء دیوبند نے کتاب میں لکھ کر، آپ نے ثابت نہیں کیا تھا علماء دیوبند غلط ہے۔
कौन बोल रहा है? बोलिए पहले तो ठीक है। मेरा नाम है शेख जलालुद्दीन है। आपसे 1 महीना पहले बात हुई थी, 2 महीना पहले, तब आपने किताब दिखाने के बाद आपने कहा हाँ ये तो गलत है। तो मैंने कहा ये उलमा देवबंद अशरफ अली थानवी और गंगोही ने लिखा है। मिसाल के तौर पर नबी का इल्म शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है और शैतान के लिए इल्म मुहीत हासिल है। ये आपको मैंने किताब दिखाया था। किताब का नाम है बराहीन कातिया। हाँ, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आपने तौबा किया देवबंदियत से? मैं कहना देवबंदियत की तर्जमा करने वाले आप है या कोई? अरे किताब उर्दू में है, तर्जमा कौन करेगा? तर्जमा करने की क्या ज़रूरत है? ना कर दे आप। किताब लिखने वाले, किताब से ताल्लुक़ रखने वाले, उनसे मुताल्लिक़ीन ही से जो है पूछिएगा ना मफ़हूम। तो आप खुद देवबंदी है तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं। आप मुफ्ती भी है, देवबंदी मुफ्ती है आप देवबंद के मुफ्ती हैं तो आपको पूछूंगा नहीं तो किसको पूछूंगा? बोलिए। आप देवबंदी बने तो किताब पढ़ के ना देवबंदी बने, या ऐसा ही बगैर पढ़े देवबंदी बने? आप मुफ्ती हो? मैंने तो नहीं कहा था। आप मुफ्ती नहीं हो? ऐसा तो हम अहमद रजा के बारे में बहुत कुछ बोल देंगे। नहीं, अभी अहमद रजा के बारे में बाद में बोलना। पहले बात हो रही है गंगोही के बारे में। आप गंगोही के बारे में बात का जवाब दें, उसके बाद आप जो सवाल करेंगे हम जवाब देंगे। हम गुलाम अहमद रजा हाजिर है जवाब देने के लिए। आप पहले हवाले से ही बात करेंगे तो आप जवाब दीजिएगा। हाँ, आप ज़रूर जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, अरे क्या मुफ्ती साहब, हम जवाब क्यों नहीं देंगे? आज तक हमने ऐसा किया है कि आप सवाल करें हमने जवाब ना दिया हो। पहले आप ये जवाब दें, शैतान के लिए इल्म मुहीत हासिल है? क्या बोल रहे हैं? शैतान के लिए इल्म मुहीत हासिल है? शैतान के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इल्म मुहीत मुहीत का मतलब क्या है? बोलिए आगे बोलिए। इल्म मुहीत शैतान के लिए हासिल है कि सारी दुनिया में हर इंसान के बारे में शैतान को खबर हो और वो जाकर हर इंसान को गुमराह करे। कहाँ एक शैतान सारी जगह गुमराह कर रहा है। तुम्हारा बोलने का मतलब है तुम जो है कहते हो कि अल्लाह के नबी हाजिर व नाजिर है, बल्कि बरली मसलक के कायल भी कहता है। तो ये किस दलील से कहते हैं कि अल्लाह के नबी हाजिर व नाजिर है? हाजिर व नाजिर होने का मतलब ये है कि तो फिर तो अल्लाह का वजूद ही खत्म हो जा रहा है। आप कैसे मुफ्ती हो जनाब? दूसरी बात, पहली बात मैं सवाल कर जवाब नहीं दे रहे। दुरुस्त कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे तो नहीं है कि मुस्तशरिकीन में तुम लोग शुमार हो जाओ। मुस्तशरिकीन में तुम्हारा तो शुमार ना हो जाए। अच्छा, मुस्तशरिकीन का शुमार होने का कैसे शुमार हो जाएगा? पहले जो है तुम लोग पहले अपना अकीदा तो सही करो भाई। देखो, उलमा देवान पर भौंकने से पहले मैं आपके 10 किताब के हवाले से जो है अहमद रजा को काफिर जो है साबित कर दूंगा। जो है करना हुसामुल हरमाइन पर पहले मुनाजरा करो ना। अहमद रजा का मुकम्मल जो है चकनाचूर हो जाएगा अकीदा। मुकम्मल जो है वो कुफरियत पर जो है मुकम्मल चला जाएगा। अच्छा, तो ये हरमाइन पर जो है उन्होंने जो इबारत जो लिखी है बताइए। मैं कह रहा हूँ देखिए, पहले अपने घर की जो है दुकान को देखिए किताब। मैं भी जो है इल्ज़ाम और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 जो है प्रोपेगेंडा और पोस्टमार्टम करके आपको दिखाएंगे। मुझे बोलने देंगे? इल्ज़ाम लगाएं मुफ्ती साहब, आप बोलने देंगे मुझे? तो आप उस इबारत पर जो इस तरह कर रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस इबारत को भी समझा दूंगा। तो पहले अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है, क्या समझाना चाह रहे हैं, इसको तो भी मैं समझाऊंगा ना। उलमा देवन की मतलब तकलीद और उनके मनहज पर चलने वाला हम ही सब समझिएगा ना। तो आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं मुफ्ती साहब? आप किस टॉपिक? आपने कहा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने शैतान के इल्म को मोहित किया, यही बोल रहा ना? नहीं, मैं तो गंगोही के बारे में कहा। मैंने कहा कि बराहीन कातिया में रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है कि शैतान के लिए इल्म मुहीत हासिल है और नबी के लिए नहीं है।
नबी का इल्म से शैतान का इल्म ज्यादा है, ये साबित किया है बराहीन कातिया में। नबी के बारे में अभी बात नहीं हो रही है, तो आपने फिर दूसरा बीच में बात ना बोले। मेहरबानी आप जो है सुनिए, मुफ्ती साहब सुनिए, आप बोलेंगे मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। अब मैं खामोश रहूंगा, आप बोलिए, और जब मैं बोलूंगा आप खामोश रहिए। आप तो बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। जब आप 2 मिनट 3 मिनट बोले, बहुत सारा इल्जाम लगाए। बात को सुनिएगा पहले मेरी। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। मैं कह रहा हूँ उस किताब का सफ़ा मुझे भेज दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है आगे पीछे इबारत पढ़ के जो है फिर आपको जवाब दे रहा हूँ, अब भेज दीजिए उस। अच्छा, तो पहले आपने जो इल्ज़ाम लगाया वो इल्ज़ाम अभी भेजिए। कौन इल्ज़ाम? आपने जो इल्ज़ाम लगाया कि आला हज़रत हम जो माज़अल्लाह इसमें हिकामुल हरमैन में घोटाला किए हैं और उसमें कुफ्र साबित हो रहा है। बताऊँगा, हम अभी उसका जवाब नहीं दें, आप पहले उस किताब का सफ़ा भेजिए, मैं उस किताब का उसका जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं भी जो है इस्तेमाल करूंगा, फिर आप जवाब दीजिएगा उसका, है कि हिकामुल हरमैन का नहीं, ये बराहीन कातिया की इबारत। आपको सब छोड़िए, अभी हम जो है उस पर नहीं जाता हूँ। आप हमको उस किताब का सफ़ा भेज दीजिए, मैं अभी आपको इंशाल्लाह समझा रहा हूँ क्या क्या नहीं, क्या आगे पीछे क्या। उस किताब का सफ़ा मैं पढ़ के बता रहा हूँ, सुनिए, पढ़ के बता रहा हूँ। नहीं भाई, आप भेजिए मुझे, आप भेजिए मुझे। अब वो स्कैन मेरे मोबाइल में नहीं है, मैं नया मोबाइल लिया हूँ, मोबाइल में चेंज कर दिया हूँ। अभी कैमरा का हो ना, कैमरा लो ना उसको। किताब भी नहीं है मेरे पास अभी। मैं अभी तो फिर जो उल्टी बाकी बातें कर लो तो मैं मान लूंगा। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अगर गलत है बाद में बोलिए। मैं नहीं, मेरे पास जो किताब है नहीं, समझे वो किताब। हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं अभी जो आपको जो दूध का दूध पानी का पानी कर दूँगा। अच्छा चलिए, दूसरे एक काम करें, अभी मेरे पास जो किताब मेरे पास मौजूद है इस किताब पर बात करते हैं। हाँ, भेज देते हैं, वही चीज अभी भेज देता हूँ। सुनिए, अभी एक चीज पर पहले भागो ना भाई, वो किताब आपने बराहीन कातिया पर जो है आपने एतराज किए हैं, कि नहीं? इबारत मुझे जुबानी बराहीन कातिया पर मुझे मतलब किसी की बात को आप मान लीजिएगा, पहले आप तहकीक नहीं कीजिएगा, यही तो जी बेशक आपका कहना की जो अलामत होती है आप लोगों। लेकिन आप बीच में मैं बात मुकम्मल बोलता हूँ, आप बोलने नहीं देते। बोलना चाहता हूँ, आप बोलने दीजिए पहले मुझे मुकम्मल, फिर मैं माजरत चाहता हूँ, आप उस किताब का सफ़ा भेज दीजिए। अगर वाक़यातन इस तरह किया है मैं कबूल कर लूँगा, क्या है। अब सुनिए मुफ्ती साहब, मैं बात मुकम्मल करूँ उसके बाद आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जब बराहीन कातिया की इबारत मुझे ज़ुबानी याद है लेकिन किताब नहीं है, तो आपने जब मुतालबा कर रहा है तो इसके बजाय मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी मेरे पास हिफ्जुल ईमान है और तहजीरुन नास है मेरे पास, तो ये दोनों किताबों से इबारत पर बात करते हैं। ये किताब का मैं अभी भेज सकता हूँ और इस पर बात करते हैं। और जब दूसरी किताब मौजूद होगी, यहाँ पर आपको इश्काल हो रहा है, उस किताब का सफ़ा भेज दीजिए। हाँ इंशाल्लाह, ये तो बात है। अभी 2 मिनट में आपको भेज रहा हूँ, रुक जाइए। आप भेजिए, मैं भी आपको जो है अगर बोलिएगा तो 2 भेज दूंगा। अभी एक मिनट में अहमद रजा हदाई के बख्शिश कीजिए, 2 हवाला पेश कर दूंगा। आप भी उसका जो जवाब तलाश करके मुझे अभी पहले मैं जो भेज रहा हूँ इस पर पहले बात मुकम्मल हो, उसके बाद आपको फिर दूसरी इबारत में भेज दूँगा। दूसरी इबारत आप भेजेंगे उस पर बात होगी। अभी पहले मैं जो भेज रहा हूँ हदाई के बख्शिश के अंदर अहमद रजा ने कहा कि मैं और अल्लाह के नबी को नबी मानूं या अल्लाह मानूं, मेरा दिल भी गवारा नहीं करता। कैसे जुमला इस पर कहते कि मेरा दिल भी गवारा नहीं करता पहले कि मैं आपको रसूल कहूँ या अल्लाह कहूँ। या तो आप अल्लाह है या तो आप जो है रसूल है या तो आप अल्लाह ही है, बताइए। अहमद रजा का ये कलीमा, अहमद रजा के अल्फाज कैसे, बताइए वो कुफ्र तक जा रहा कि नहीं, बोलिए। तो उसको भेज, उस पर बात करेंगे या ताजीर नस पर बात करेंगे? फिर जो है मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो जवाब मैं भी किताब भेजूंगा आपको। मैं भेज रहा हूँ, आप दूसरा किताब क्यों उठा रहे हैं? जब मैं भेज रहा हूँ तो इस पर फिर अभी भेज दिया। देखिए पहले आप भेजिए ना, मैं पहले भेज दिया। देखिए एक मिनट अभी देखिए तो भेजिए, मैं आपको जो है दे रहा हूँ जवाब, फिर आप जो है फिर मैं आपको भेज आप कि नहीं। हमें जो है मैं भेज दिया, मयार पर रहते हुए बात करना है। मुफ्ती साहब मैं तहजीरुन नास की इबारत मैं भेज दिया। 43 एक दूसरी इबारत देखता हूँ तहजीरुन नास, ठीक है। और सफ़ा नंबर 43 तहजीरुन नास का मैं भेज रहा हूँ।
صفحہ हाँ نمبر भेजिए हो 1 منٹ رک جائیے. भेजिए ہاں صفحہ نمبر 43 تحذیر الناس فرنٹ پیج بھی بھیج دیا. آپ دیکھ لیجئے مفتی صاحب آ چکا ہوگا آپ کے پاس. دے رہا ہوں جی. دیکھ لیجئے. ہاں ہاں آ گیا. اس پر مجھ سے بات کرو. ہاں یہ تحذیر الناس ہے. اور حفظ الایمان اشرف علی تھانوی، اس کو بھی آپ بولے تھے بھیجنے کے لیے، میں ٹھیک ہے بھیج رہا. بھائی اس کو بھی بھیج دیا. چلیے آپ بات شروع کیجیے، اس پر بات کیجیے. پھر آپ جو بھیجیں گے ہدایت بخشش کا، وہ بھی میں اس پر بات کروں گا. پہلے اس پہ بات مکمل ہو جائے. اصل میں براہین قاطعہ مجھے یاد آیا تو بات کرنے کے لیے، لیکن کتاب میرے پاس ابھی یہی 2 ہے اور میں ابھی سفر میں ہوں، اس لیے میں سوچا جو ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. جی مفتی صاحب بتائیے. پڑھ کے بتائیے. پڑھ لیجیے. ذرا زور سے پڑھیے مفتی صاحب، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ پڑھ رہے ہیں. بولیے تحذیر الناس پر کیا اشکال ہے؟ اس میں بالفرض بعد زمانہ نبوت کوئی نیا نبی پیدا ہو، پھر بھی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. نیا نبی نہیں ہے. ہاں پھر سے پڑھو. پھر سے پڑھیے. ہاں میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. میں آپ کو صرف بتایا تھا، ابھی میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. ہاں ٹھیک ہے. یہ ان کا یہ دعویٰ ہے، اور اس میں پہلے پیج میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عوام کے خیال ہے حضور خاتم النبیین کا اس معنی عوام سمجھتے ہیں. عوام کا عقیدہ ہے کہ حضور کا زمانہ آخر میں ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ تقدم و تاخر میں کوئی فرق نہیں، کوئی ارے یار صحیح جگہ چلے گا نہیں. یہ آخر حضور دوسرے نبی پیدا ہو، پھر حضور خاتم النبیین کیسے رہیں گے بتاؤ. کیا بولا؟ بلکہ بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں پیدا ہو. تو یہ قادیانی کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ قادیانی کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ قادیانی کیا عقیدہ ہے؟ قادیانی کا عقیدہ کہ حضور اگر مرزا قادیانی نبی ہے تو حضور آخری نبی ہے ہی، پھر بھی قرآن کی آیات کا انکار نہیں ہو رہا ہے. قادیانی یہی دعویٰ کرتے ہیں اور آپ بھی یہی دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ یہ کفر ہے. حضور کا زمانہ آخر میں اور حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. عبارت پر کیا جو اشکال ہے؟ ابھی تحذیر الناس کی عبارت ہے. یہ عبارت پر میرا اشکال آپ مفتی صاحب کتنی بار سنے ہیں، اس کے بعد بھی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تحذیر الناس میں یہ بات مرزا قادیانی کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ دیوبندی اچھا ہے. آپ بچوں سے ذرا دور ہٹ جائیے، آواز بہت آ رہی ہے، بچوں کی آواز آ رہی ہے. میرے پاس بچہ ہے نہیں، آپ کے پاس بچہ ہے بھائی. یہ کہ کہاں آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. ہاں بولیے. ہاں بات یہ ہے کہ تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے بالفرض بعد زمانہ نبی کوئی نبی بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، پھر بھی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا. خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. مطلب بولنا چاہ رہے ہیں کہ دیوبندی بولتا ہے کہ نبی اگر آ جائے
मैं तुम यही बोलना चाह रहे हैं कि देवबंदी का अकीदा इस तरह है कि नबी अगर कोई आ जाए हाँ तो माना वो आखिरी नबी होगा, तो क्या हाँ, फिर भी हुजूर आखिरी नबी ही रहेंगे जैसा माना तुम अपने मतलब ले लो और किताब खंगालोगे नहीं। और किताब बताओ, ये अल्फाज जो बयान है यहाँ यही मतलब है ना, ये लफ्ज का यही मतलब है ना, और किताब खंगाल में क्या मिलेगा? पहले बात सुन पहले। आप तो और भी बहुत सारी बातें मिलेगा, लेकिन ये बात तो मुकम्मल हुई ना यहाँ। अपने आप तुम जो है कयास कर लोगे कि क्यास का क्या माना मुफ्ती साहब? यहाँ क्यास क्या हो रहा है? यहाँ तो क्यास नहीं हो रहा है, बिल्कुल वहाँ वाज़ेह अल्फाज है कि हुजूर के खातिमियत का कोई माना यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमियत का खुला इनकार है। जैसा कादियानी इनकार करते हैं ऐसा ये देवबंदी इनकार करते हैं। कादियानी खातिमियत का इनकार करने की वजह से काफिर है, इसी तरह देवबंदी काफिर है। मैं तुम अपने तरफ मतलब निकालोगे, मैं कह रहा हूँ आप अपने मतलब बताओ ना, आपका किताब का क्या मतलब है, इसलिए तो पूछने के लिए फोन किया। देवन का कम से कम बात को पहले सुना चाहिए। उलमाए देवन का कम से कम इस शोबा पर, इस फंड पर, खत्म नबूवत पर जो है कम से कम जो है शोबा, मैं कह रहा हूँ शोबा, और इस पर मुसलसल दर्द होता है कि मुसलसल अल्लाह के नबी सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी आ जाता है उसको जूते के नोक पर उड़ा दिया गया है। ये इबारत में तो वो नहीं है, ये इबारत में तो आप जो क्या आप दावा कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं, आपके दावा के ये इबारत खिलाफ है। आपका दावा नहीं देखा जाएगा जब ये सबूत है कि आपके दावा के खिलाफ। इबारत का मतलब है कि अगर इसी किताब के कोई नबी आ जाए तो खत्म नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ही आखिरी नबी है। तब दूसरा नबी पैदा हो तो हुजूर आखिरी नबी फिर भी रहेंगे। कौन दूसरा नबी अगर पैदा हो जाए, नबी पैदा हो, हाँ यहाँ नबी पैदा हुआ और तो शुरू में भी इनकार किया। आप जो दावा कह रहे हैं मुगालता देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अभी शुरू में किया गया। आप जो मुगालता देने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू में इबारत पढ़िए मुफ्ती साहब। कुरान खानी करते करते जो ऐलान हो गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद जो है झूठा जो 30 नबी जो है दज्जाल झूठा लफ्ज है ही नहीं, और शुरू में भी लिखा हुआ है। इस इबारत का मतलब है, इस इबारत का मतलब कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह फरमाना चाह रहे हैं कि अल्लाह के नबी पर जो है कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, बल्कि ईसा और मूसा भी अगर आ गया तो मेरे आखिरी नबी की ही इत्तिबा करना पड़ेगा उन लोगों। अरे ये नहीं है, और इस इबारत का मतलब ही यही है। आप जो कह रहे हैं कोई आप मतलब जो बोलता है तो मानेंगे कोई नबी जो है आ जाएगा तो नबी आखिरी नबी होगा। तुम अपना मतलब निकालोगे। नहीं तुम अपना मतलब निकालोगे, जो इबारत में है वही मतलब ना निकलेगा कि आप अपनी तरफ से मतलब गढ़ोगे। कैसे मतलब निकालना तुम? मैं मतलब ये निकाल रहा हूँ बताओ निकालो। मैं बता रहा हूँ, शुरू के 4 नंबर पेज में भी ये आपकी बात की नफी की गई, और मैं जो दावा कर रहा हूँ मेरी दावा की दलील खुद आपके कासिम नानोतवी ने शुरू पेज में भी दिया है। 4 नंबर पेज मैं भेजा हूँ। 4 नंबर पेज में क्या लिखा है देखिए कि अवाम के ख्याल में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बाई माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक के ज़माने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़मानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। यहाँ ये बताया गया है कि अवाम का ख्याल है, अवाम का ख्याल, जैसा अवाम बहुत सारे ख्याल बातिला अवाम रखते हैं, तो इसी तरह ये अवाम का ख्याल है। लेकिन अहले इल्म पर ये वाज़ेह है कि तक़द्दुम व ताख़ुर ज़माने में कोई फजीलत नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिमुन नबुव्वत, खातिमुन नबिय्यीन होने की कोई फजीलत यहाँ नहीं है करके इनकार किया गया है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आए तो भी न हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिमियत में फ़र्क नहीं आएगा। यानी बोल रहा ना, रुकिए ना भाई, सुने ना। अल्लाह के नबी के ज़माना ही में जो है कौन मुस्लिम बिन कज़्ज़ाब पैदा हुआ गया था, नबी का दावा किया था कि नहीं? तो यहाँ वो तो झूठा था, वो नबी थोड़ी था, उसको नबी मानते हैं। फिर नबी पैदा हुआ था कि झूठा पैदा हुआ था? झूठा दावा किया था ना, झूठा दावा। झूठे दावा करने से वो नबी हो जाता है? कोई दावा करने से आप अगर कहेंगे कि कोई खुदा उसी को हम खुदा कहेंगे। मिर्जा कादियानी को, यानी आप मुसैलमतुल कज़्ज़ाब को भी नबी मान रहे हैं?
नबी पैदा हो गया था। नबी वो तो नबी नहीं था, नबी होने की बात हो रही है। और शुरू में भी अल्फाज में ये है कि तकद्दुम ताख़ुर जमाने में कोई फर्क नहीं है, दूसरा नबी पहले तो आप सच्चे नबी की बात करते हैं। नोक पर किसने रखा? पहले सबसे पहले उलमा देवबंद ने जूते के नोक पर रखा उसको। कौन बोले? कौन बोले? ये बात तो आप गलत। कादियानी को जब कादियानी को काफिर करार दिया गया फतवा रशीदिया में, मिर्जा कादियानी के कुफर का इनकार किया गया, मिर्जा कादियानी को काफिर कहने से मना किया गया, बल्कि मिर्जा कादियानी का जो है ताल्लुक सबसे पहले शुरू ही में जो है गलत फलत नहीं हो गया था, उसका शुरू में जो है उसका अकीदा सही था। जब गुमराह हुआ तब आला हजरत ने उसको काफिर कहा, सबसे पहले आला हजरत ने काफिर कहा कादियानी को, और तुम लोगों ने कादियानी को काफिर कहने वालों को काफिर कहा। के साथ मुलविस होता चला गया, शैतान के वसूलों में फंसता चला गया। देवाना देखा, अरे बाप ये तो इतना खतरनाक तो इबलीस है। फिर उसको जो है सब ने जो है उलमा अकाबिर उलमा ने सब ने जो गुमराही वो मुजद्दिद होने का जब दावा किया था, वो शुरू में उसका गलत नहीं था, भी तो इनके साथ था ना। अहमद रजा का तो बहुत खतरनाक है यार। अच्छा सुन, इस इबारत के अंदर तो उतना पता भी नहीं चल रहा, लेकिन अहमद रजा हदाई के बख्शिश के अंदर लिख रहा है, मैं अल्लाह के नबी के रसूल का हूं। बाद में जाइएगा, मेरा यकीन भी नहीं था, मेरा दिल भी गवाह नहीं करता या अल्लाह के नबी का रसूल का हूं या अल्लाह को, या तो आप अल्लाह ही या रसूल है। बताइए इस इबारत पर उलमाए अहमद रजा जो है जूते की नोक पर जो आ जा रहा कि नहीं? बताओ। देवबंद ने तो मिर्जा को काफिर कहने से मना किया है, साबित हो जा रहा है। मिर्जा को काफिर कहने से उलमाए देवबंद ने मना किया है, और सबसे पहले काफिर मिर्जा को दुनिया के कोई माइक का लाल। अच्छा साहब, आप क्यों मुगालता देने की कोशिश कर रहे हैं? दुनिया के कोई माई का लाल उसको काफिर होना से नहीं हो हवाला सकता। हमारी किताब का क्यों दे रहे हैं? अभी भेज रहा हूं के बारे में कादियानी का अकीदा आप क्यों अपने उलमा के लिए जो कादियानी का अकीदा है उससे भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भेज रहा हूँ भाई, हदाई के बख्शिश अभी भेज रहा हूँ मैं आपको। पहले इस पर बात मुकम्मल करें, इस पर बात मुकम्मल करे। आपके देखिए देवबंद वाले शर्म से पानी पानी हो जाएगा आपकी बात सुनकर। आप खुद अपने अकाबिरीन से भाग रहे हो, आपके अकाबिरीन तो कह रहे हैं नबी पैदा हो, वो तो और ने जो है। दूसरी बात, आप एक बार तो सच्चे नबी का हवाला देते हो, ईसा की बात करते हो, दोबारा की बात करते हो। बताओ, उलमाए देवन ने खत्म नबूवत का शोबा अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 100-200 जो है शोबा है, ये दावा है आपका। लेकिन मैं जो पेश किया दलील मैं पेश किया, दावा की दलील नहीं दे रहे हो। मुझे ये किताब आप मिर्जा कादियानियों के अकीदा, तुम लोग मिर्जा कादियानी के जो अकीदा है, आपने कहा शुरू में मुझे देखिए मिर्जा कादियानी का अकीदा एक लगता मुझे, क्योंकि अहमद रजा ने इस सिलसिले पर जो कुछ मतलब कलम उठाया नहीं है। कौन बोले कलम उठाए नहीं? कितने बड़े झूठे हैं। मिर्जा को काफिर मिर्जा को काफिर कहने से मना किया, बोले मैं ऐसे को काफिर नहीं कहता, बल्कि उसके काफिर कहने वाले को काफिर कहूँ। खुद देखिए थानवी ने लिखा है, गंगोही ने लिखा है, मिर्जा कादियानी के बारे में बहुत तारीफें लिखे हैं, मिर्जा कादियानी के बारे में बहुत तारीफें लिखे हैं, गंगोही ने भी, अशरफ अली थानवी ने भी लिखे हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि मिर्जा कादियानी के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते हैं, तो आप कादियानी के अकीदा क्यों प्रमोट करते हैं? अहमद रजा ने क्या क्या मालूम है? हुसामुल हरमैन लिख के क्या किया था? देखिए सामने इकराम कभी हदाई के बख्शिश पे भाग रहा है, कभी हुसामुल हरमैन पे भाग रहा है, कभी आला हज़रत के दूसरे हवाला देने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है, लेकिन जो इबारत मैंने पेश किया उस इबारत का जवाब नहीं दे पा रहा है। ये मुसैलमतुल कज़्ज़ाब को भी नबी मान रहा है, और गुलाम अहमद कादियानी को भी नबी मान रहा है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमियत दुश्मनी में मरा और रजा का लिया, खुद को शैतान कालिया कौन था? तुम्हारे मौलवी सब काली की तरफ से दावा किए हैं। आज भी बरेली में जाओ, आला हजरत के औलाद को तुम्हारी खुद को शैतानी चेला बना देवबंदी काफिर, तुमने किताब का हवाला देने के बजाय आप जो आ गए हो, ये तुम्हारी बुखलाहट कर रही है कि तुम हार चुके हो।
तुम्हारी बयानात ये साबित कर रही है कि तुम हार चुके हो। पूरी दुनिया का रजा खानी, अल्हम्दुलिल्लाह हम रजा खान के मानने वाले हैं। हम डंके की चोट पे कहते हैं हमारी किताब में कोई गलत कोई फर्क नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। बिदात कौन सी बिदात? अभी बिदात पे बात में करो, पहले तहजीरुन नास पे तुमने कादियानी के अकीदा तुमने क्यों ठीक है, अपनी जगह में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तुम्हारा जो भेजा जो नबूवत का तुमने इनकार किया, पेज नंबर पहले नंबर पेज में भी तीजा 40वां जो है ये सब खाते खाते फातिया तीजा ये सब जो खाते ये सब तुम्हारे हाजी अब्दुल्लाह मुहाजिर मक्की भी खाते थे, तुम लोग भेजा अशरफ अली थानवी भी खाते थे। ये सब हो गया बिल्कुल। अरे दिमाग रहेगा तभी तो समझ में आएगा। तो यहाँ तुम्हारे मौलवी में कोई दिमाग नहीं था, दिमाग समझ तुम्हारे दिमाग रहेगा इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को दिमाग नहीं समझ में आएगा भाई। दिमाग नहीं में जाएगा, मजर में जाएगा, कब्र में सजदा करेगा, पत्थर में सजदा करेगा। तुम्हारा ये मुफ्ती है, हिंदू का अकीदा में कुछ फर्क नहीं है। हमारे उलमा का अकीदा बयान करने के बजाय जाहिलों के अमल पेश कर रहे हैं। नहीं मैं जाहिलों के अमल पेश कर रहे हैं, जाहिलों का अमल दलील होता है। जाहिलों का अमल नहीं, मैं अभी भी दुनिया में बोझ है दुनिया के लिए, दुनिया की तुम्हारी देवबंदियत पर बोझ लानत है तुम पर। नाज़िरुन नास की इबारत हम उनके उलमा की उनके अकादमी की इबारत पेश कर रहे हैं, और ये लोग अकादमी की इबारत पेश करने के बजाय हमारे अमल बता रहे हैं। तुमने और हमारे में यही फर्क है, तुमने और हमें यही फर्क है कि तुम जाहिलों के अमल को दलील बनाते हो, हम तुम्हारे उलमा की बात को दलील बनाते हैं। ये सब जो है बात साबित हो गया। देवबंदी के पास तहज़ीरुन नास का कोई जवाब नहीं है, और जो जायज उम्र है जायज है तो दो चार ये बकवास कर रहा है। जो जायज है खुद उनके मौलवी के नजदीक जायज है, उस पर ये बकवास कर रहा है। लेकिन मेरी किताब मैं जो इबारत पेश किया हूँ, मैं जो काफिर लानती की इबारत पेश किया हूँ, उस पर जवाब नहीं दे रहा है, बार-बार इधर-उधर भाग रहा है। इससे यही साबित हुआ कि देवबंदी मक्का झूठा और देवबंदी अपने अकादमी को काफिर मानता है। ये बात खत्म हो गई, देवबंदी काफिर साबित हो गया, देवबंदियों के अकादमी काफिर साबित हो गया। कादियानी से बदतर काफिर है, इनकी किताब में कादियानी की तरह इनकी किताब में भी कुफर भरा पड़ा है। बात समझ में आ गई? अब बात मैं खत्म करता हूँ, कॉल कट कर देता हूँ। ये देवबंदी के पास जवाब नहीं है, ये तहज़ीरुन नास पर बात करना चाहते हैं कि अपने अकाबिर इनको काफिर मान चुके हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला देवबंदी काफिरों को दुनिया में जलील और रुसवा फरमाए। अल्लाह ताला इन काफिरों को जल्द से जल्द अज़ाब में मुब्तला फरमाए। आमीन। हाँ मुफ्ती साहब, बोले आप क्या बोल रहे थे? तबीयत खराब है तो आपने अभी कॉल किया था और बदतमीजी बदजुबानी से बात का, मुफ्ती होकर बदजुबानी करते हो। माफी चाहता है, अच्छी तरह तमीज से बात करने आता नहीं आपको? सुनिए ना सर, बाद में बात करें। कब बात करोगे? टाइम बताओ। करूँगा यार बाद में, थोड़ा सा अभी मशगूलियत में शादी में आया हूँ। जानबूझ के गुमराही में क्यों फंसे रहते हो आप लोग? कितनी गुमराही तुम्हारा साबित करने के बाद भी तुम हट धरने पर अड़े रहते हो, बिला वजह बेगैर दलील के आला हजरत पर तुम तनकीद करते हो, लान तान करते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, तुम्हारी किताब में जब लिखा हुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आए तो खातिमियत में फर्क नहीं आएगा, और तुम उसका जवाब देने के बजाय तुम आला हजरत पर बिला वजह लान तान करते हो। हाँ, तुम्हारी किताब में अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखा हुआ है, उसका जवाब देने के बजाय तुम आला हजरत पर बिला वजह लान तान करते हो। बख्शिश का जो सवाल है, अहमद रजा के हड्डियों को मेरा बाबा में दूर चैलेंज। अच्छा बोलो, हृदय के बख्शिश का कौन सा क्या एतराज है? हाँ, एक काम करो, तुम जाओ उसके खबर पर करोड़ों लानत भेजो। नहीं, तुम्हारे ऊपर लानत भेजता हूँ, तुम झूठे हवाले देते हो। अहमद रजा खबीस पर तो खबीस तो अगर होते तुम्हारे मौलवी कहा कि हम उनके कुफर पर, तो बहुत दूर की बात है, उनके ऊपर जरा गुस्ताखी भी हम जायज नहीं समझते। तुम्हारे महमूद हसन देवबंदी पर पहले लानत करो, उनके कब्र पे जाके पहले 100 जूता मारो। हाँ, महमूद हसन देवबंदी पर, अशरफ अली थानवी पर और मुर्तजा हसन देवबंदी पर पहले लानत भेजो। हाँ, आला हजरत पर तनकीद करने के बजाय पहले अपने मुल्लाओं पर तनकीद करो। उन मुल्लाओं ने गुस्ताखी को नाजायज कहा। आज भी तुम्हारे तारीख जामिल कहता है कि आला हजरत की शान में गुस्ताखी ना करे। तुम्हारे तारीख जमीन भी कहता है और तुम गुस्ताखी करते हो। तुम अपने मुल्लाओं तो पहले मानो, बेशर्म कहीं का। शर्म हया कुछ है कि नहीं? अपने मौलवियों को मानते नहीं, अपने मौलवियों को मानते नहीं कि जिस तरह यहूदी
यहूदी दावा अहमद करते रजा हैं का यहूदी होने का, अकीदा मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं और मानते। जो ईसा है अलैहिस्सलाम को मानने का दावा अहमद करते हैं रजा लेकिन का ईसा अकीदा, अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। तो सुनो, इसी तरह तुम लोग भी अहमद हो रजा कि का जिसको मानने का अकीदा, दावा करते हो उसको भी नहीं मानते ओ ढंग से। भाई शर्म सुनो, हया रखो, अहमद बेहया रजा का बेगैरत अकीदा काफिर, और बेगैरत जो काफिर। है तुम्हारे इबारत का जवाब दे सकते हो? हाँ, नहीं, मैं दे एक सकते हो इबारत तुम्हारी भेजा इबारत का। हूँ, करोड़ों तुम अगर लानत हो एक इस बाप की हदीस औलाद हो, पर। तुम्हारी इबारत का जवाब दो, मैं तुम्हारी कह इबारत रहा का हूँ जवाब दो। करोड़ों तुम मुझे लानत हो, लिखे हो अल्लाह झूठ बोल अहमद सकता रजा है। की जुज चल इस और मसले पर हड्डी जो बात कर, बन चल चुकी है, चल मुफ्तखोर उसके मुफ्ती, इस जिस्म मसले के पर बात अंदर कर, जो चल। हड्डी और सुरमा बन चुकी है, उसको भी मैं चैलेंज वो करता तुम्हारा हूँ। दावा है, तुम्हारा वो तुम तुम्हारा दावा कैसे है, जो तुम्हारे है मुल्लाओं को। अहमद रजा को पार कर दोगे, बेड़ा कैसे पार करेगा? अरे तुम कहाँ, उन्होंने तुम ऐसे बोलो, बहुत आमने सामने अरे बैठोगे तुम? राफसी और शिया का जो धर्म सामने है बैठोगे? वही जो है धर्म। देखिए सामने इकराम, राफसी ये सिर्फ सुन, बदजुबानी कर रहा है। राफसी ये और सामने बैठने शिया की का भी जो हिम्मत नहीं धर्म है, रखता, मैंने जो दलील एक देने की भी पोस्ट हिम्मत किया नहीं हूँ, रखता। और मायशा इनकी किताबों सिद्दीका की रज़ी कुफरियात हम अल्लाह बता अन्हा चुके पर हैं। हदाई के दोपहर में बख्शिश भी जो पर बात उन्होंने हुई थी, ऐसा अशार 24 मिनट का रिकॉर्डिंग, उन्होंने वो भी ऐसा हम साथ में अशार डालेंगे, उन्होंने ये यूट्यूब ऐसा पर आ शेर जाएगी। लिखा है अब इन मायशा काफिर सिद्दीका रज़ी देवबंदियों की अल्लाह अन्हा बदजुबानी पर। देखिए, बदजुबानी देखिए। जब ये मायशा अपने सिद्दीका को रज़ी मुसलमान साबित नहीं कर अल्लाह अन्हा सकता तो पर आला हजरत पर सहाबा को बदजुबानी गाली करते कौन हैं। देता है भाई? इन राफसी देवबंदी देता है। काफिरों को सहाबा को गाली अल्लाह ताला शिया गारत देता है, करे, रुसवा करे। सहाबा को गाली हाँ, यजीदी अब देता तू है, कभी भी सहाबा को गाली शिया देता हमारे है, सामने बैठने की सहाबा को जरूरत नहीं रख गाली सकता। यजीद देता है। तू जो बोल, अपने सहाबा को एड्रेस गाली बता, देता कहाँ है वो कहाँ काफिर तू है। रहता है, बोल, वो मैं तो तेरे उलमाए सामने आकर देवन का बैठूंगा। मजहबी है, तेरे उलमाए सामने देवन का आकर फतवा उलमाए है, देवबंद को तेरे सामने काफिर साबित उलमाए करूंगा। देवन का तेरे फतवा अंदर ये जुर्रत है है, जो तेरी सहाबा किताबें को निकाल गाली के ला। दे, जो सहाबा तेरे को पास लान तान करे, वो किताब दायरे दिखा, इस्लाम से किताब दिखा, खारिज है। सबूत पेश कर। तो अहमद रजा खारिज है चल दायरे इस्लाम से, वो सबूत पेश काफिर कर, साबित हो गया। सबूत पेश कर। तू दुनिया मैंने का बदतरीन वो काफिर तो है, ये पेश हमने कर सबूत दिया दे हूँ। दिया। हदाई के बख्शिश, हदाई के बख्शिश के अंदर जो मनाकिब जो लिखा है अहमद रजा चमार ने, क्या? जो इसी तरह जो शिया साबित हो गया हो ना, हाँ, राफसी साबित हो गया। जो साहबा अदा के इकराम को गाली बख्शिश दे का वो जो जिल्द है स्वम, वो जिल्द कुरान स्वम जो हदीस के मंसूर खिलाफ, अली साहब लिखे हैं, कुरान हदीस को उन्होंने तौबा जो किया, कुरान रुजू हदीस किया। को जो तोड़ तो देता है, साहबा जिसने इकराम को लिखा गाली देता उसने है वो तौबा काफिर और है। रुजू किया। और तो आला साहबा हजरत पर इसका इकराम हुक्म को कैसा गाली लगेगा? देने बेशरम बेगैरत काफिर वाला वहां भी काफिर हो जाता तुम्हारे गंगुली है। नानूती, इसकी तो इसकी वजह इसलिए से जो काफिर भी है नहीं होता। अहमद रजा हाँ, बरेली और इसकी काफिर वजह से हो कोई गया। काफिर नहीं होता। कोई भी अगर अभी तो प्रिंटिंग का एक ही प्रेस की दलील गलती है और उसका, तुम्हारे घर से अगर तुम्हारे कोई ही प्रेस दुकान से वाला ने भेजा हूँ। शिया राफजी होने की वजह से प्रेस वालों ने गलती किया तो उसको मैं आला कह हजरत पर रहा क्यों हूँ थोप अभी रहा तो है? आला हजरत के वफात के अल्लाह 20 साल के बाद थोप लिखे रहा गए हैं, हूँ। उसको तो आला तुम्हारे हजरत पर थोप रहा बाप है का बेगैरत। बाप भी बेड़ा पार नहीं कर पाया। अहमद हाँ, रजा ने तौबा की तो इस थी पर इसी मुझसे बात पर। मुनाजरा करेगा, आमने सामने बैठेगा क्या? बोल। अरे अहमद रजा ने इसी तू बात पर पहले तौबा अपने की एड्रेस थी। बताना, मेरे एड्रेस पे आ जा। सांगली जिला की थी। इस्लामपुर, दारुल उलूम बरकाते अहमद रजा, हमारा मदरसा का नाम। मैं तू अपना कह एड्रेस बता, रहा हूँ तू अपना एड्रेस बता, मैं चल। कह रहा हूँ तू अपना एड्रेस बता, हैं? चल। अब एड्रेस बता, मैं आऊंगा, एड्रेस तेरे पता सामने तो आऊंगा। फोन ही में जैसा तू बात देखा करना ना भाई। वीडियो यूट्यूब पर देखा वीडियो, हम हर गांव में पहुंच जाते हैं जहां के तेरे जैसा कटमुल्ला रहते हैं, रहकर जहां लोगों को गुमराह करते हैं, वहां जाकर उनके नल्ला पकड़कर ना उनके सामने उनको काफिर साबित करते हैं। तू जानता है, इसलिए तू अपना एड्रेस नहीं बताएगा। अगर एक बाप की औलाद होता, तू मुफ्तखोर मुफ्ती, अगर अपना सही एड्रेस दे, अभी सेंड कर, मैं तेरे एड्रेस पे पहुंचूंगा और तेरे सामने मुनाजरा करूंगा। तू मुफ्ती है ना? तुम इसी हाँ, तू मुफ्ती मुफ्तखोर मुफ्ती काफिर। तो अपने अकाबरीन के कुफर पर बात नहीं कर सकता, बिला वजह आला हजरत पर तनकीद करता है। तेरा महमूद हसन देवबंदी दलील खुद ही कहते नहीं हैं है। आला और ये हजरत के कुफर पर तो बहुत दूर की बात है, उनके शान में गुस्ताखी भी हमारे नजदीक जायज नहीं है, तेरे महमूद हसन देवबंदी कहता है। अब तो उन पर कुफर का फतवा लगा, पहले शेखुल हिंद तेरा देवबंदियों का, उस पर कुफर का फतवा लगा। मुर्तज़ा हसन देवबंदी कहते हैं अशद्दिल अज़ाब इला मसीहिल कज़्ज़ाब, अशद्दिल अज़ाब अला मसीहिल कज़्ज़ाब के किताब के अंदर लिखा है, मुर्तज़ा हसन देवबंदी ने लिखा है कि मुर्तज़ा हसन देवबंदी ने लिखा है कि आला हजरत अगर देवबंदियों को काफिर नहीं कहते तो खुद काफिर हो जाते। यानी आला हजरत को काफिर नहीं कह रहे, देवबंदी को खुद देवबंदी काफिर कह रहा है। और खुद तेरे इस्माइल दहलवी लिखा है, इस्माइल दहलवी तेरा लिखा है कि दुनिया में एक हवा चलेगी, सारे मोमिन खत्म हो जाएंगे। वो हवा चल चुकी, एक हवा चलेगी, सारे काफिर खत्म हो जाएंगे। हदीस का हवाला देते हैं, वो हदीस का हवाला देते हुए कहते हैं सो हवा चल चुकी, यानी सारे मोमिन खत्म हो गए। तो सारे मोमिन जब खत्म हो गए तो इस्माइल दहलवी कहाँ मोमिन बचा? आज सारे देवबंदी को इस्माइल दहलवी खुद काफिर कह दिया।
क्योंकि क़यामत से मजाक पहले कहाँ साबित है जब मजाक। सूरज है मगरिब से बाबू। तुलू होगा, दज्जाल आएगा और हाँ मसीह मौऊद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, दोबारा तशरीफ सुना लाएंगे। ना, तो अपना मत उसके बाद जाइए। हाँ, उसके बाद मजाक जो अब क्यों भेजते हैं अपने लोग। आखिर में एक ठंडी हवा चलेगी, सिर्फ 7 मुसलमान जब बचेंगे उसके बाद ठंडी हवा चलेगी तो सब खत्म हो जाएगा उस ठंडी हवा से। तो वो हवा चल चुकी, तुम्हारे इस्माइल दहलवी के नजदीक 100 साल पहले ही वो हवा चल चुकी। तो अब उस वो हवा से पहले इमाम मेहदी आने वाले हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, और सूरज पश्चिम मगरिब से तुलू होने वाले हैं। वो सब हो चुका है तुम्हारे नजदीक। कितने बड़े काफिर हो यार, बेईमान काफिर देवबंदी, फिर भी अपने मुल्लाओं के कुफर पर बात करते नहीं। इस्माइल दहलवी का वो हवा चल चुकी, यानी सारे काफिर, सारी दुनिया अभी काफिरों से भरा हुआ है। वो खुद भी काफिर बना उसी इबारत की रोशनी में, क्योंकि जब हवा चलेगी वो हवा ठंडी हवा जो क़यामत से पहले चलेगी, सारे मोमिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद काफिरों पर क़यामत आएगी। काफिरों पर क़यामत आएगी, मोमिन पर क़यामत नहीं आएगी। सुना देवबंदी काफिर। तो क़यामत जब आएगी तो हवा चलेगी, वो हवा इस्माइल दहलवी के नजदीक चल चुकी है, तक़वियतुल ईमान में लिखे हैं वो हवा चल चुकी। तो वो हवा चल चुकी तो सारी दुनिया के मुसलमान खत्म हो गए। अब तो तू बचा, तू क्या काफिर बचा या मोमिन बचा? अगर तू अपने को मोमिन कहता है तो इस्माइल दहलवी झूठा है, और इस्माइल दहलवी खुद रहते हुए कह रहे वो हवा चल चुकी, वो खुद भी काफिर साबित हुआ। देवबंदी, तुम्हारे नजदीक कुफर की ऐसी मशीन है, तुम हर किसी को खुद काफिर कहते हो, और फिर लोगों को धोखा देने के लिए कहते हो काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। बरेली भी काफिर कह रहे हैं हमको, बेवकूफ कहीं का, खुद को काफिर कह रहा है और खुद ही काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए काफिर को? मोमिन कहना चाहिए। है मुफ्तखोर मुफ्ती, तुझे इल्म को किसने मुफ्ती बनाया रे बेवकूफ, जाहिल गवार, अनपढ़ कहीं का। भाग गया। कौन इसको मुफ्ती बनाया रे? देखिए, ऐसे जाहिलों को मुफ्ती बना के भेज दिया देवबंदियों ने, देवबंद से, और सारे देवबंदियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया देवबंदी काफिर ने। अब जो आला हजरत पर बहतान लगा रहा है, हदाय के बख्शिश जिल्द सोम, वो आला हजरत के वफात के 30 साल के बाद लिखे हैं। तो आला हजरत ने जब लिखा ही नहीं, आला हजरत पर कैसे कुफर का फतवा लगा रहा है? और जब आला हजरत लिखा नहीं, आला हजरत के बाद भी अगर आला हजरत लिखे होते, आला हजरत के थानवी 20 साल भी जिंदा रहा, आला हजरत के बाद भी 20 साल जिंदा रहा थानवी। तो 20 साल के अंदर थानवी को आला हजरत की इबारत नहीं पहुंची। अगर इबारत पहुंची होती और थानवी देखता तो थानवी खुद कुफर का फतवा लगाता, क्योंकि थानवी पर आला हजरत कुफर का फतवा लगाया था। थानवी को जिद और हटदर्मी थी ना, लेकिन थानवी के ज़माने में भी थानवी पूरी ज़िंदगी में कभी आला हजरत पर लान तान नहीं कर सका, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी, जुर्रत नहीं थी। और 30 साल के बाद मंसूर अली, अल्लामा मंसूर अली साहब ने हदाय के बख्शिश जिल्द सोम छपवाया था, और वो प्रेस वाला यहूदी था, या प्रेस वाला ये था शिया राफजी था, उसने गलती से छाप दिया था, वो हेर फेर किया था, उसने उसके अंदर खयानत किया था। बाद में मंसूर अली साहब ने उसको आपने फिर भी अपनी गलती मानकर उन्होंने रुजू किया, तौबा किया। तो अब मंसूर अली साहब पर हुक्म लगेगा, आला हजरत पर हुक्म नहीं लगेगा, और जिस पर हुक्म लगना था उसने तौबा कर लिया, एलानिया उन्होंने तौबा किया, रुजू किया। तो इस वजह से इस पर आला हजरत पर कोई हुक्म नहीं लगेगा, इस इबारत की वजह से। देवबंदी खुद जानता है, इससे कभी भी देवबंदी को हमारे आला हजरत के खिलाफ एक इबारत, एक लफ्ज गलत नहीं मिलेगा। जानबूझकर ये देवबंदी लोगों को गुमराह करने के लिए, मुगालता डालने के लिए इस तरह की बकवास करते हैं, और हम देवबंदियों की इबारत से पूरे उनकी कुफरी अकायद, पूरा खुल्लम खुल्ला कुफरी अकायद देवबंदियों की किताब से हम बयान करते हैं, दिखाते हैं। उसके बावजूद ये देवबंदी, ये उनके गलाजत का पलंदा, देव का बंदा, अकल का अंधा, शक्ल का गंदा, गंदगी का पलंदा, ये देवबंदी लानतवी का बंदर, उसके बावजूद भी इनको तौबा नसीब नहीं होती, क्योंकि जो एक मरतबा गुस्ताखी करता है उसको अल्लाह ताला उसके नसीब से, उसके मुकद्दर से हिदायत छीन लेता है अल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको देवबंदी काफिरों से दूर और नुफुर रहने की, और देवबंदियों को जलील करने की, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रुसवा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अरे मुफ्तखोर देवबंदी काफिर,
تیرے کفر پر بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہاں براہین قاطعہ پر بات کرنے میں نانی مر جاتی ہے کہ تیری بے شرم کافر. براہین قاطعہ پر، صراط مستقیم پر، تحذیر الناس پر بات کر. صبح تو تحذیر الناس پر بات کرتا ہوا تحذیر الناس پر بات کرتا ہوا تو نے خود مسیلمۃ الکذاب کو بھی نبی کہہ دیا. تو نے مسیلمۃ الکذاب کو بھی نبی کہہ دیا. اور موسیٰ علیہ السلام آئے گا تو بھی ختمیات میں فرق نہیں آئے گا. وہ مثال تو نے مسیلمۃ الکذاب سے دیا ہے. جیسا مسیلمۃ الکذاب آیا ہے، مسیلمۃ الکذاب کو نبی مانا تو نے، اور پھر تو نے مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانا اور تحذیر الناس کی عبادت کا ستیاناش کر دیا تو نے. تو پہلے چوتھے نمبر پیج میں جو لکھا ہوا ہے کہ عوام کے خیال میں ہے اور اس کا رد کیا ہے. عوام کے خیال میں حضور کا آخری زمانہ ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک اس کے یہ نہیں ہے. اہل علم کے نزدیک تقدم و تاخر میں کوئی فرق، کوئی ذات فضیلت نہیں ہے. دیوبندی کافر، شرم کر، کچھ بھی شرم کر، بے غیرت. ہاں تو شرک کرتا ہے، ہم تھوڑی شرک کرتے ہیں. چل شرک پر بات کر، کون سا شرک ہے بتا. چل ابھی شرک پر بات کرتے ہیں. چل شرک پر بات کرتے ہیں. ہم تو نہیں بھیجتے. تم بھیجتا ہے؟ ہم نہیں بھیجتے. ہماری کتاب سے ثابت کر. تم بھیجتا میں دکھاؤں. چلو کلیئر شریف ہماری کتاب سے ثابت کرنا. ہم بھیجتے کہ ہمارے سارے لوگ کیا ہم سے پوچھ کے جاتا ہے. مشاہدہ میں دکھاؤں، مشاہدہ کتاب سے بات کرنا. مشاہدہ ہم بھی دیکھے ہیں. جن مشاہدہ میں ہم دیکھتے ہیں. مشاہدہ بتاؤ ہمارا مشاہدہ. ہمارا مشاہدہ بتاؤ. محمود مدنی خود جا کے چادر چڑھایا. اب وہ مشرک ہے کہ نہیں؟ محمود مدنی خود چادر چڑھایا. کیوں چڑھایا؟ جواب دے اس کا. قبر سے مانگتا ہے. قبر یہ بھی تو ہمارا مشاہدہ ہے. محمود مدنی قبر پہ جا کے مانگا بھی، چادر بھی چڑھایا. میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن تم لوگ قبر تو اس کے خلاف تیرے مولوی کیوں کرتا ہے؟ تیرے مولوی خود قاسم نانوتوی سلیٹ جا کر شاہجہاں لال کے مزار پہ شاہجہاں لال کے مزار پہ چلا کیا. کلیئر شریف روڑکی سے کلیئر پیدل چلتا تھا، پیدل ننگے پیر جاتا تھا. ہاں بتا. تم بہت ہو رہا تھا. صابر کلیاری کے مزار پہ جا کے چلا کرتا تھا قاسم نانوتوی. صابر کلیاری کے مزار کو ناپاک کر دیا تیرے لیے نا پورا. نہیں تم لوگ چلا کیا نا. میں نے کیا تو تمہارے قاسم نانوتوی نے چلا کیا صابر کلیاری کے مزار پہ. تو وہ مشرک ہوا کہ نہیں؟ اچھا ایک بات مشرک ہوا کہ نہیں؟ تو جس ٹاپک پہ جائے گا وہاں سے تو بھاگے گا، کیونکہ ایک ٹاپک پہ ٹکے گا نہیں، ایک موضوع پہ ٹکے گا نہیں. مفت اور مفتی شرک تو کرتا ہے. نانوتا میں جاڑا بخار آیا تو قبر کے مٹی چاٹ کے تم لوگوں نے شفا حاصل کیا. خود اشرف علی تھانوی تعلیم دیتا ہے قبر کی مٹی چاٹ کے شفا حاصل کرو. ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے. ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے قاسم اشرف علی تھانوی قبر کی مٹی چاٹ کر کے نانوتا میں جاڑا بخار آیا تو یعقوب نانوتوی کے قبر کی مٹی سے شفا حاصل کیے. مٹی چاٹنے والے قبر کے پجاری دیوبندی کافر ہم کو قبر پجاری کہتا ہے. شرم کر. قبر پجاری کرتے ہیں تم قبر پجاری ہو. تم لوگ قبر پوجا کرتے ہو اور ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، تمہاری تعلیمات میں قبر کی مٹی چاٹنا ہے. ہماری تعلیمات میں قبر پہ صرف فاتحہ پڑھنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، وسیلہ لینا ہے، استعانت کر لینا ہے. ہمارے مزار پہ مٹی چاٹنا نہیں ہے ہماری تعلیمات میں. چل دفاع ہو جا. جواب دے دیا. کافر انگریز کے سردار. ارے دیوبندی کافر بار بار ذلیل ہونے کے لیے فون کیوں کرتا ہے؟ فون کر کے ذلیل ہوتا ہے پھر بھاگتا ہے، کٹ کر کے بھاگ جاتا ہے. دیوبندی کافر اگر فون کرتا ہے تو فون صحیح سے بات کرنا. دلیل بھی دیتا نہیں. بے شرم دیوبندی وہابی کافر کال کٹ کر کے بھاگ جاتا ہے. جواب دینے کے بجائے بھاگ جاتا ہے. تو اپنے ایڈریس بتا. پہلے واٹس ایپ پہ مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کر. مفت اور مفتی. ارے مفت اور مفتی کافر دیوبندی پہلے تو اپنا ایڈریس بتا. میں آمنے سامنے تیرے پاس بیٹھنے کے لیے ایڈریس بھیج. آدھار کارڈ کا فوٹو بھیج. آدھار کارڈ کا فوٹو بھیج. ایڈریس بھیج. مناظرہ کروں گا تیرے سامنے آ کر. چل دفعہ ہو جا. مفت کو